Hello everyone, welcome to Catch 25's MHCT 2021 series, and now we are continuing with new chapter Motion in Plane. Motion is very essential part of our day-to-day life. Okay, whenever we move from one location to another location, we say there is motion. Your location is given by the position, and whenever you change your position, there exists something what we call as displacement. Now when we consider this displacement with respect to time, that is displacement per unit time, we say or we study velocity in that particular case. Whenever we study velocity with respect to time, there comes acceleration. There are multiple terms, but we require these main terms, that is position, displacement, velocity, acceleration. In today's session, we are going to talk about 1D motion. Whenever object moves along a single axis, it doesn't matter whether it is moving towards right or towards left. वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड एक्स में जा रहा है, लेफ्ट में, वो फर्क नहीं पड़ता. क्या फर्क पड़ता है कि कितने एक्सिस को लेके मूव कर रहा है. इफ इट इज मूविंग अलोंग सिंगल एक्सिस, वी से इट इज वन डायमेंशनल मोशन. अगर इस वन डायमेंशनल मोशन में देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वी से द मोशन इज यूनिफॉर्म. बट अगर वेलोसिटी बोलो या फिर एक्सेलरेशन बोलो, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वी से द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. माई सेल्फ तुषार मुंडकर, लेट्स कंटिन्यू विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से बात करेंगे और क्वेश्चन स्टडी करते करते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे. An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. तो एक रिवोल्यूशन करने के लिए उसको 40 सेकेंड लगते हैं. द टाइम टेकन बाय एन पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नथिंग बट टाइम पीरियड, एंड हेंस आपको यहां पे दिया गया है t, दैट इज 40 सेकेंड. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So this is the complete time given. Let's denote it by small t. It is 2 minutes and 20 seconds. अभी देखो 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 2 मिनट 120, उसमें ये 20 ऐड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा. टोटल वी आर टॉकिंग अबाउट 140 सेकेंड्स, है ना. सो टोटल जर्नी हो रहा है 140 सेकेंड्स का. अभी जब हम लोग बात करते हैं एक रिवॉल्यूशन की, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए 40 सेकेंड लगते हैं. तो बाय गोइंग विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक, अगर हम लोग को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस will be given by, number of revolutions is total time divided by time period. So we will write 140 divided by 40. If we solve it further, we get the answer as 3 12 12 2, that is 3.5. That means वो 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड 1 हाफ रिवॉल्यूशन. व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस? दे वांट अस टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. अगर हम लोग सर्कल को कंसीडर करेंगे, दिस इज द सर्कल, लेट्स से दिस इज अवर स्टार्टिंग पोजीशन P. सो P से लेके कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए? 3. तो एक रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट P to P, देन अगेन P to P, then again P to P, and after that we are doing half revolution. That means we reach to new position, that is P dash. Displacement is the shortest distance between initial and final position. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो. डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो P और P डैश के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? It is nothing but diameter of a circle, and which is given by 2 times the radius. So option B is your correct answer. Let's move on with the next question. A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on horizontal ground. मतलब wheel है, wheel अपने पास, and it is going to roll like this, but it will only cover half a revolution. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact of the ground. पहली बात तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, या फिर जो जैसे देखो सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो व्हाट विल आई चूज? आई विल डिवाइड इट. मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है. ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the point of the wheel initially in contact with the ground. तो जो भी व्हील का पॉइंट होगा जो इनिशियली ग्राउंड के साथ टच हुआ है, वो पॉइंट कितना मूव हुआ, दैट यू वांट टू फाइंड आउट. तो क्यों ना एक सिनारियो क्रिएट करे, क्यों ना हम लोग एक ऐसा सर्कल क्रिएट करें. नाउ लेट्स से ये ग्राउंड क्रिएट कर देते हैं. अब इस पर्टिकुलर सर्कल का या फिर ऑब्जेक्ट का
you have a point, let's say A point touching the ground, you can name it anything you want, A point है जिसने ground को touch किया. अभी जैसे ये wheel आगे roll होगा, what is going to happen? जैसे imagine करो, this is the wheel we are talking about, this is my A point. See, when it is rolling, our A point is coming up 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 up. तो मतलब A point का लोकेशन चेंज हो रहा है धीरे धीरे. जैसे व्हील आगे जाएगा तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद A पॉइंट जाएगा टॉप पे. कहां पे जाएगा A पॉइंट? एट द टॉप. सो आई हैव नोटेड इट डाउन. नाउ वी नो दैट अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन से रोटेट कर रहा है, दैट मींस ग्राउंड पे उसने हाफ सर्कमफेरेंस कवर किया. दैट हाफ सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट पाई आर. तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये पाई आर हुआ. ये डिस्टेंस कितना हुआ? दैट इज बिटवीन ए एंड द ग्राउंड पॉइंट. ग्राउंड पे भी नया पॉइंट आया होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 2r which is nothing but diameter. Now what do you want to find out? Displacement. As I said in earlier question, displacement is the shortest distance possible. So we need to join this A along with the new position of A, and we see something interesting happening. We see a triangle getting formed. Since it is a 90-degree triangle, we can apply Pythagoras theorem. Let's say this unknown distance, that is displacement, be x. Then we can use Pythagoras theorem, and using Pythagoras theorem we can write x equals to under root of square of the sides. One side is pi r, उसका स्क्वायर हो जाएगा pi square r square. The another side is 2r, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 square 4 into r square. Now if I want to take out the r, what will happen? Okay, they have also given it rolls 1 meter forward. So directly उन्होंने pi r का वैल्यू दिया है, मतलब हमें ओके. सो वी बेसिकली हैव आर का वैल्यू, तो व्हाई डोंट वी यूज दैट आर का वैल्यू? मतलब 1 मीटर फॉरवर्ड रोल कर रहा है ना, तो दैट मीन्स पाई आर इज गिवन एज 1. सो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. 1 मीटर अगर वो फॉरवर्ड रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स पाई आर विल बी इक्वल्स टू 1 और आर विल बी इक्वल्स टू 1 by pi. So I can put it over here to find out. Just give me a second. व्हील, ओहो मैंने गलत डेटा रीड किया गाइस. एकदम इजी क्वेश्चन था, फोकट में टफ कर दिया हम लोगों ने. रेडियस क्या बोला है? रेडियस 1 मीटर बोला है, तो यहाँ पे r के जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डालना है. तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4. एज इजी एज दैट. देखो यहाँ पे एक आपने चीज नोटिस की कि अगर आपने एक भी डेटा मिस आउट कर दिया तो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है. मेरे पास नेक्स्ट स्टेप रेडी था, मैं इधर से आर स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर निकालने वाला था, बट वो तो टफ हो रहा है. इससे अच्छा आप डायरेक्टली ही यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करोगे तो ये इजी हो जाएगा. तो एक डेटा मिस करने की वजह से क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये भी हम लोगों ने यहाँ देखा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1. हाफ डिस्टेंस बोला है, क्या स्पीड से? v1. रिमेनिंग हाफ किससे? v2. जब भी आप किसी भी डिस्टेंस को दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहे हो, सर इक्वल किधर बोला है? हाफ का मतलब क्या? हाफ बोलोगे तो फुल का इक्वल पार्ट में डिवीजन हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में. तो लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो वेयर दिस इज योर रोड एंड इस रोड को आपने डिवाइड किया दो इक्वल डिस्टेंस से. लेट्स से दिस इज d1 एंड दिस इज d2. तो ये d1 और d2 क्या हुआ है? इक्वल हुआ है. तो जब डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं एंड दैट इज हाफ, ऑब्वियसली इक्वल आ रहा है तो दैट मींस हाफ ही होना चाहिए उसको. तो ये d/2 हो रहा है, दैट इज टोटल डिस्टेंस का हाफ. ऐसे सिनेरियो में जो आपका एवरेज वेलोसिटी दिया जाता है, रिमेंबर द शॉर्टकट फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये फॉर्मूला आता है. टू प्रूव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दे हैव कंसिडर्ड दैट टाइम और टोटल टाइम इज गिवन बाय t1 प्लस t2 एंड आफ्टर दैट they have used, और हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या करेंगे t को डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बिकम d बाय v इक्वल्स टू d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2. d1 d2 के वैल्यू पुट करोगे, d/2 वो कैंसलेशन हो जाएगा एंड इवेंचुअली यू विल गेट द सेम थिंग. यहाँ पे प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ क्या याद रखना है? फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? अगर डिस्टेंसेस हाफ हो रहे तो
और लेट से पहले डिस्टेंस के लिए देयर इज अ पर्सन विच इज मूविंग विद द स्पीड v1 एंड फॉर हाफ डिस्टेंस ही इज मूविंग विद द स्पीड v2, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अच्छे से याद रखना. बट सर what if we are not going to divide the distance, okay, we are going to divide the time. अगर सर ऐसा सिनारियो हुआ जहां पे आप टाइम को डिवाइड कर रहे हो, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड एंड इस ग्राउंड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो टाइम में. फर्स्ट टाइम इज t1 एंड अनदर टाइम इज t2. दिस टाइम यू कैन से दैट t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2. फर्क एक ही है, उसमें क्या डिवाइड किया डिस्टेंस, इसमें क्या डिवाइड किया टाइम. तो आप कैसे लिखोगे आपके फॉर्मूला को, आप फॉर्मूला को ऐसे लिखोगे. In this scenario, V average becomes equals to V1 plus V2 upon 2. Why don't you try to complete the derivation, guys? ये जो यहाँ पे मैंने हाफ छोड़ा है, आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो और चेक करो क्या उनके फॉर्मूला से अपना फॉर्मूला मैच हो रहा है कि नहीं. ओके, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है. फिर से बता रहा हूं, अगर डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो क्या होगा, V एवरेज इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. बट अगर कंसिडरेशन में टाइम हाफ है तो क्या होगा, T1 T2 इक्वल्स टू T by 2. Let's move on with the next concept. The displacement time graph of a two particles A and B are straight lines inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with time axis. पहली बात तो ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करते हैं. मैं कुछ ग्राफ्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, आपको ये नोट डाउन करनी है, अच्छे से समझनी है. देखो जब भी मैं कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्टडी करता हूं, आई ऑलवेज टेक टाइम ऑन माई एक्स एक्सिस. ये चीज याद रखनी है. टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया आपने, वाई एक्सिस पे लिया पोजीशन. दो तीन चीजें याद रखनी है. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, वो हमेशा आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है. तो ये देगा आपको वेलोसिटी. अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हो, सो लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देता है एक्सेलरेशन. ये एक चीज याद रखनी है. तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसका आपने स्लोप निकाला, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो वेलोसिटी मिलेगा. व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद आपको एक सिंपल सी चीज और अंडरस्टैंड करनी है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो अगर आपके पास समझो एक कर्व है या फिर कोई भी एक लाइन है और उसके अंडर का आपने एरिया निकाला, किस केस में, वीटी ग्राफ. अभी भी मैं वीटी ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे. तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ या फिर एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. So then what is area under xt graph? There is no parameter that we get from that thing, okay? But यहाँ पे अगर आपने area find out किया तो हमें मिलेगा displacement. ये दो चीजें आई होप आपने नोट डाउन की है. जैसे आपने ये चीजों को नोट डाउन किया है, now let's try to continue with the question. तो अभी उन्होंने क्या बोला है मुझे, उन्होंने बोला है कि आपके पास दो लाइन्स है, एक है VA का लाइन और एक है VB का लाइन. मतलब दो ऑब्वियसली दो चीजों का लाइन दे हैव गिवन, ए पार्टिकल के लिए बी पार्टिकल के लिए. तो हम लोग अभी करेंगे ए पार्टिकल की बात. लेट्स यूज डिफरेंटिंग. ओके, लेट्स बिगिन. सो देयर इज दिस पार्टिकल नोन एज ए पार्टिकल एंड ए पार्टिकल कवर्स एंगल ऑफ 30 डिग्री whereas बी पार्टिकल्स कवर एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो आप ये हो गया आपका 60 और बी का हो गया 60, ए का हो गया 30. नाउ सी, अब भी जस्ट आपको दिख रहा है, उन्होंने पूछा है VA अपॉन VB. सो वी वांट टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेलोसिटीज. करें, कैसे निकालोगे? थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी. तो मुझे स्लोप निकालना है. स्लोप के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट ओवर हियर वी डोंट हैव दो पोजीशंस या फिर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल वाला. गिवन डेटा के हिसाब से आपके फॉर्मूला को एडजस्ट करना सीखो. So first thing over here it will be tan theta 1, at the bottom it will be tan theta 2. So let's try to put this particular thing. Tan theta 1 is tan 30, tan theta 2 is tan 60. Tan theta that is tan 30 is 1 by root 3 and जो tan 60 होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है root 3. So 1 by root 3 नीचे आएगा, नीचे हो जाएगा root 3 और root 3 दोनों का झगड़ा होगा, झगड़े में स्क्वायर रूट का नुकसान होगा और बचेगा 1 by 3. So the correct option of this particular case will be 1:3. कंसेप्ट याद रखो, हर एक क्वेश्चन मैंने सेपरेट चूज किया है, रीजन है उसके पीछे.
ये जो है ना, आप जब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ पढ़ोगे आपको बेटर वे से समझेगा कि कौन से टाइप पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर कितना होगा? तो देखो आपको क्या दिया है, आपको टोटल 2 टाइम दिए हैं। आपको पहले 1 घंटे का हिसाब बोला है, 1 घंटे के लिए स्पीड इतना है, और फिर उसके आधे के घंटे के लिए स्पीड इतना है। आपको स्पीड निकालना है। यहाँ पे ना एक अच्छी बात होती है, स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, बहुत मतलब बहुत सिंपल। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिखा मैंने। अभी टोटल डिस्टेंस है, मेरे को पता ही नहीं है, मतलब क्या है डिस्टेंस, किधर है पता है, मेरे को तो नहीं पता। लेट्स कॉल इट एज S1, लेट्स कॉल इट एज S2 अपॉन टोटल टाइम पता है 1 घंटा प्लस हाफ घंटा। सो दैट मीन्स टोटल कितना हुआ 1.5 आवर। सो आई विल राइट इट एज 1.5। सिंस वी रिक्वायर आंसर इन किलोमीटर पर आवर ना, तो हम लोग 1.5 लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी प्रॉब्लम S1 का है, बट वी नो द फॉर्मूला ना, that is velocity या फिर speed is S1 divided by T1. So from over here we can write S1 equals to V1 multiplied by T1. Similarly S2 को क्या लिखोगे, V2 into T2. Let's try to calculate। V1 60 है, T1 half 1 है, V2 क्या है 40 है, T2 half है, तो ये कितना हुआ 20। तो आपको 60 और 20 मिल गए डिस्टेंसेस। फिर स्पीड कितना हुआ, so let's say average speed will be equals to 60 plus 20 upon 1.5, so that will be 80 upon 3 by 2। ओके, तो ये ऊपर आएगा, आपको मिलेगा 82 जा हो जाएगा 160 upon 3। सो इसको सॉल्व करोगे आई थिंक 5, फिर उसके बाद 533333। ओके गॉट इट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अच्छा जय माता दी मत करना कि बाकी सारे ऑप्शन प्रॉपर है, एक ही है जिसमें पॉइंट नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में हमें सोचना है, जितना भी आप फटाफट फटाफट करोगे, कंसेप्ट्स को अच्छे से लर्न करोगे, आंसर्स फटाफट फटाफट आएंगे। अगर क्वेश्चंस मतलब देखो, पहले आपका जो भी टारगेट है वो अचीव करो, बाद में जय माता दी करेंगे, बट उसके पहले पूरा एफर्ट लेना है। The velocity of a body depends on time according to the equation v equals to 20 plus 0.1 t square. The body is undergoing what? So मुझे निकालना है कि ये इक्वेशन दिया है आपको वेलोसिटी का, उससे आप उसका एक्सेलरेशन बताओ। How can you find it out? Acceleration, velocity. Is there any relation between acceleration and velocity? Yes, there is. And that is acceleration is change in velocity अपॉन टाइम। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो मुझे डेरिवेटिव के टर्म्स में आंसर आता है, दैट इज dv by dt। सो लेट्स ट्राई टू राइट इट लाइक दिस। d by dt लिखा, v का वैल्यू क्या है 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर। अभी आप लोग तो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो डेरिवेटिव में। 20 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, 0.1 बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.2t। सर बट अपने पास टाइम नहीं है, तो हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकाले? अरे निकालना क्यों है, एक्सेलरेशन पूछा ही नहीं है तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको एक्सेलरेशन देख के कंक्लूजन निकालना है। जीरो तो वो होने से रहा क्योंकि जीरो नहीं है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके सर एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? सिंस इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन, पहले ये क्लियर हो गया, तो रिटार्डेशन हटा दो, जीरो भी हटा दो। अभी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सिंस इट इज देख रहे हो आपको, या फिर इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टाइम, है ना? सो सिंस इट डिपेंड्स ऑन टाइम और ये टाइम के ऊपर डिपेंड है, आप टाइम का वैल्यू चेंज करोगे, ए का वैल्यू चेंज, टाइम का वैल्यू 1 डालो, ए का वैल्यू 0.2, टाइम का वैल्यू 2 डालो, ए का वैल्यू 0.4। दैट मींस एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपको एक कांस्टेंट नंबर आता जैसे सिर्फ 0.2, तो आप आंसर लिखते एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, और निगेटिव आता तो रिटार्डेशन, वो मत भूलना। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइडेड किया है वो गाइस वेक्टर्स में है,
एंड वेक्टर्स में आपके दो कंपोनेंट है, एक है 6i, दूसरा है 8j। आपको मिल गया। कैसे पता चला? i अलोंग x बोला है, ओके, तो यूनिट वेक्टर i यूज करोगे। अलोंग y बोला है तो यूनिट वेक्टर j यूज करोगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 4 सेकेंड, तो आपको टाइम निकालना है आफ्टर 4 सेकेंड। कैसे? सॉरी, डिस्टेंस निकालना है, दैट इज s। हाउ कैन यू फाइंड आउट? देखो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब यहाँ पे एक और डेटा है आपका u इक्वल्स टू 0। ओ, s आ गया, u आ गया, t आ गया, a भी मिल जाएगा। डोंट यू एग्री विथ मी दैट s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर? ut को उड़ा दो, हाफ at स्क्वायर करा दो। प्रॉब्लम अभी किसका है? a का है। क्यों प्रॉब्लम है? आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ i के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, j के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। सो दैट मीन्स, ये तो आप सबको पता होगा ना, कैलकुलेशन 10 आएगा। तो आप क्या करोगे? हाफ इंटू a का वैल्यू 10, t का वैल्यू 4 का स्क्वायर। सो दैट विल बी 4 into 4, 2, so 16, 16, 8, 80. So 80 is the correct answer. Option C. Voila, we are done with it. The displacement is given by x equals to 2t square plus t plus 5. Acceleration निकालो बोला है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव करना है, क्योंकि समझो आपको वेलोसिटी निकालना होता तो आप क्या करते? dx by dt। तो दैट मीन्स d by dt ऑफ टर्म क्या है? 2t square plus t plus 5, and just before this particular sum we agreed that आपको डेरिवेटिव बहुत बढ़िया से आता है। तो 2 बाहर आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया, t का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, 5 का डेरिवेटिव 0। सो आपको मिला 4t plus 1। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा। बट मेरे दोस्त, हम लोगों को ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। सो एक्सेलरेशन विल बी dv by dt। सो 4t का क्या हो जाएगा? 4, 1 का 0, 4 plus 0, आंसर क्या आया? 4। तो टाइम क्यों है? येड़ा बनाने के लिए। हो ना, होने देना, क्या फर्क पड़ता है? टाइम एक्स्ट्रा दिया तो कुछ प्रॉब्लम होता है? जरूरी नहीं है। रिसेंटली हुआ, मैं कैच में लेक्चर ले रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि क्या सर, मतलब अभी एक डेटा दिया है, तो वो डेटा क्यों दिया है सर? अगर मतलब दिया है तो उसका यूज करना ही होगा ना सम में। आप एक्स्ट्रा डेटा देख के कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि ये यूज ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो इट इज एक्स्ट्रा डेटा, जस्ट इग्नोर इट। लाइफ में जितनी चीजों को इग्नोर करोगे उतना हैप्पी रहोगे। नेक्स्ट, स्टडी छोड़ के। A body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 3rd second? तो देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं वर्डिंग्स है, th, 4th, 3rd। सो वी आर टॉकिंग अबाउट nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर दो, हाईलाइट कर दो, ब्रैकेट कर दो, अंडरलाइन कर दो, इटैलिक बोल्ड, जो करना है कर दो, बट कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस कवर्ड in nth second, and this distance is given by Sn, which is u plus a by 2, आगे आएगा 2n minus 1। अभी बारी आती है पुट करने की। सर n क्या है? n is the second they are talking about. I am not talking about 1 to 4 second, I am talking about specifically 4th second, चौथे सेकंड की बात कर रहे हैं, 3rd सेकंड की बात कर रहे हैं। तो S4 क्या हो जाएगा? u, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं, क्या बोला? रेस्ट। अरे हाँ, तो पता है ना यार, और इजी हो गया। u 0, 6, तो ये 0 हो गया, ये हो गया a by 2, a के बारे में पता नहीं है। 2 into 4 minus 1, देखो n के जगह 4 डाला। फिर 7, देखो S7 हो जाएगा a by 2, 2 into, सॉरी 3rd सेकेंड है, तो S3, 2 into 3 minus 1। तो फिर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन में जो 7 बार बार दिख रहा है ना, वो दिमाग में सेट हो गया, तो यहाँ पे आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फर्दर। 4 2 8, 8 minus 1 7, तो ये 7 by 2 हो गया। तो अगर आप S4 to S3 का रेशियो लोगे तो ये हो गया 7 by 2 अपॉन 3 2 6, 6 minus 1 5, 5 by 2, 2 2 कट, आपको आंसर मिला 7 by 5। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंड वी आर डन विद इट। नेक्स्ट, रिलेशन दिया है 3t इक्वल्स टू √3x प्लस 6। ओके, और आपको क्या निकालना है? ये डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको निकालना है, नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, बट जब वेलोसिटी 0 होगा तब। तो पहली बात तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपको क्या करना है? आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। हाउ कैन आई डू दैट? First of all, let me write the equation like this: 3t equals to √3x plus c.
6 को ये साइड लेके जाते हैं या फिर √3x को एडजस्ट करते हैं, √3x इधर रहा, 3t माइनस 6 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t माइनस 6 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9t स्क्वायर माइनस 6, 2 टाइम्स 3t, 2ab वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यार, ये भी कोई फॉर्मूला है, इजी एकदम। तो फिर उसके बाद x का वैल्यू 3 से डिवाइड मार देता हूँ डायरेक्टली, मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 9t स्क्वायर अपॉन 3 दैट विल बी 3t स्क्वायर, एक 3 इधर का कट, सो दैट मीन्स 6 2 12t प्लस यहाँ पे भी 12 हो गया, ये आपका x का इक्वेशन है, इसको हाईलाइट करते हैं। फिर क्या निकालना है आपको डिस्प्लेस, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्लेसमेंट का आंसर फाइनाइट दिया है, दैट मीन्स यू हैव स्पेसिफिक ऑप्शंस, but the issue is that you don't have time, so as soon as you get the time you will get what you are looking for, and for getting that time velocity को 0 बोला है ना, हिंट पकड़, यहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करने के लिए नहीं दिया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx by dt, तो दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 3t का स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा 6t माइनस 12 प्लस 12 का तो वैसे भी 0 हो जाएगा। We know that this velocity is given to be 0, so this becomes 60 minus 12, 12 ये साइड आ गया, 12 हो जाएगा 60, तो दैट मीन्स टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, हो गया टाइम 2 सेकेंड। अब इस टाइम को ऊपर पुट करो, तो ऊपर पुट करने के बाद आपको क्योंकि आपको वेलोसिटी नहीं पूछा है, वेलोसिटी तो दिया है, दे वांट यू टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ पे 3 हो गया, इधर पे 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, ओहो क्या कैलकुलेशन है। So 2 2 4, 4 3 12, 12 minus 24 plus 12 बराबर ना, ये तो 0 हो गया। तो जब वेलोसिटी 0 हो रहा है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो रहा है, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो बोलना मत कि सर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ, इट इज पॉसिबल, ऑब्जेक्ट ने उसी पॉइंट से ओरिजिनेट किया होगा या फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट किया होगा और उसी पॉइंट पे एंड हुआ होगा, सिंस उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कुछ डाउट्स है कंसेप्ट रिलेटेड तो कमेंट्स में भी जरूर पूछिएगा ताकि हम आपको आंसर कर सके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।